Hello everyone, welcome back. Let's embark on a transformative journey as we delve into the art and science of routine garden operations. Mastering essential tasks and witnessing the magic of nature unfolds. Join us on this exploration of horticulture, floriculture excellence, and elevate your gardening experience. In this presentation, I will discuss about soil preparation, soil laying, sowing of seeds, need of nursery raising, then some terms related to this field, that is breaking, transplantation, shedding, defoliation, bending, mulching, and manuring. So I will try to cover these topics in this presentation. Let's dive in. Firstly, the first step in this floriculture is soil sterilization. This is the first step. As the name indicates, we have to make the soil pest and disease free because soil contains many harmful bacteria, fungal spores that can destroy our crop. So that's why we need to sterilize the soil. And in order to prevent diseases and pest, soil sterilization is required. तो पेस्ट और डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम सॉइल को स्टरलाइज करते हैं एंड इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सोलर स्टरलाइजेशन बाय यूजिंग सनलाइट एंड it can be done with the help of using certain chemicals. So first I will discuss about solar sterilization. So field should be prepared thoroughly after plowing. सबसे पहले plowing के बाद field को thoroughly prepare किया जाता है. Then we add well rotten farm yard manure, जो सड़ी गली खाद होती है उसे ऐड करते हैं. And field should be irrigated thoroughly. और उसके बाद इसमें irrigation properly की जाती है. This is farm yard manure made from cow dung. Then comes labeling of the fields. उसके बाद जो fields हैं उन्हें properly label किया जाता है. Then soil should be covered with white, transparent, thin, that is 25 to 50 micron thick polythene sheets for 4 to 6 weeks. तो उसके बाद लेवलिंग करने के बाद हम इस सॉयल को शीट से कवर करते हैं जिसकी थिकनेस होती है 25 से 50 माइक्रोन. एंड आफ्टर दैट जो सन रेज हैं वो एंटर करती हैं अंदर एंड दे गेट स्ट्रैप्ड इनसाइड दिस पॉलीथीन शीट विच हेल्प्स इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉयल. और जो इंक्रीज टेम्परेचर होता है सॉयल का, दैट विल डिस्ट्रॉय ऑलमोस्ट ऑल द फंगल स्पोर्स एंड पेस्ट, क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो ये स्पोर्स हैं फंगस के और माइक्रोब्स हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. सो बाय दिस वे वी कैन डू सॉइल स्टरलाइजेशन एंड दिस टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन हैज़ नो साइड इफेक्ट्स. So these strong radiations from sun get trapped inside the plastic sheet. और ट्रैपिंग के बाद ये जो रेज हैं ये सॉइल को हीट अप करती हैं जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है सॉइल का, और जो इंक्रीज टेम्परेचर है वो स्टॉप करता है ग्रोथ ऑफ दिस फंगल स्पोर्स एंड सम पेस्ट्स. Next comes chemical sterilization. And for this we use certain chemicals which are used to sterilize the soil, and the most commonly used chemical is formalin. Formalin को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, and the amount at which we can use this chemical is 7.5 to 10 liters per 100 meter square of the soil. और इसे हम यूज़ करते हैं either by using spray of this formalin or by soil drenching. Drenching means हम liquid को इसके ऊपर pour करते हैं, so that chemical along with water is poured on the soil. That is called soil drenching, and it is diluted 10 times in water and then sprayed or drenched on the beds. The beds are then covered with plastic sheets for 7 days. उसके बाद इन बेड्स को कवर किया जाता है by using plastic sheets, ताकि ये जो केमिकल हमने यूज़ किया है इवेपोरेट ना हो और इसका इफेक्ट बना रहे. सो आफ्टर रिमूविंग द शीट, एक हफ्ते के बाद जब हम इस शीट को रिमूव करेंगे, फॉर नेक्स्ट 2 weeks द सॉइल इज़ रैक्ड थॉरली. उसके बाद इस सॉइल की रैकिंग की आती है बाय यूजिंग सम रैकिंग डिवाइसेस, बाय यूजिंग दीज मशीन्स, और इट कैन बी डन मैनुअली विद द हैंड्स सो एज टू रिमूव एनी केमिकल रेजिड्यू. इसकी रैकिंग के बाद इसमें कोई भी केमिकल रेजिड्यू ना बचे, तो उसके लिए हम इसे प्रॉपरली रैक करते हैं सॉइल को. देन इट इज़ एडवाइज टू वेट फॉर 2 weeks बिफोर प्लांटेशन.
तो उसके बाद 2 वीक्स के लिए हम सॉयल को एक्सपोज्ड खुला रखते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कैन सो आवर सीड्स इन द सॉयल. Other chemicals that can be used as soil sterilizers, like we have methyl bromide, और इसका हम यूज़ करते हैं 25 to 30 grams per meter. Then we have this another chemical substance that is called basamid. Commercial name is Desomat. इसको हम यूज़ करते हैं 30 to 40 grams per meter square of the soil. तो ये कुछ chemicals हैं जिन्हें हम as a soil sterilizers यूज़ करते हैं. Next step is soil laying. So it means leveling of the soil. So prepare soil by thorough plowing, removing clods, stones and debris. उसके बाद soil से जो भी debris है, straws है, कोई भी waste चीज़ें हैं, उनको यहाँ से remove किया जाता है. Then we will mix well rotten farmyard, और इसका जो amount है that is 5 kg per meter square. 1 मीटर स्क्वायर में हम यूज़ करते हैं 5 kg of this farmyard manure. Then we will level the soil and create beds as needed. उसके बाद इसमें bed बनाते हैं by raising the soil. For lawns, sieve the soil, create a soil heap and mix farmyard manure and sand in a ratio of 1:1:1. अगर हमने लॉन बनाना है तो हम इस सॉइल को इकट्ठा करते हैं, सीव्स बनाते हैं, then we will make a heap of the soil. एक heap बनाते हैं, then we will mix this farmyard manure and sand in a ratio of 1:1:1. तो इस रेशो में मिक्स किया जाता है evenly. After that we will spread this soil evenly for the preparation of this lawn in a designated area. और जहाँ पे हमने लॉन बनाना है उसके बाद हम इसे स्प्रेड करते हैं इस हीप को thoroughly. एंड जो भी वीड्स हैं इनको रिमूव किया जाता है पहले. Then after that we will mix the soil with this farmyard manure, and after that racking is done. So this is a device that can be used for racking of soil or leveling of the soil. Next comes sowing of seeds. This is very important step. जो seeds हैं उन्हें directly हम sow नहीं करते हैं. Before sowing the seeds we have to prepare the seed for sowing, और preparation के लिए हम बहुत सारे methods use करते हैं, and it varies from seed to seed. So the process of planting seeds is known as sowing. Sowing होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सीड्स को प्लांट करते हैं. Certain seeds require a treatment prior to the sowing process. कुछ सीड्स को हम ट्रीट करते हैं तभी उन्हें सो किया जाता है. This treatment may be seed scarification, stratification, seed soaking और seed cleaning with cold or medium hot water. So ये कुछ methods हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं before sowing the seeds. Seeds having hard seed coats required scarification. तो इसमें हम seed coat को बाहर से रब करते हैं by using ragmark और रिमूव करते हैं हार्ड सीड्स को. Then seed soaking treatments where seeds having requirement of chilling for germination requires stratification treatment. कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिन्हें चिल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स दे रिक्वायर वेरी लो टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन प्रोसेस. फॉर दो सीड्स वी हैव टू डू दिस स्ट्रेटिफिकेशन. In case of certain ornamental plants, the seed is sown in seasonal annuals or other landscape plants like trees or shrubs. तो इन्हें इस केस में हम सीड्स को सो करते हैं सीजनल एनिमल्स में. सीजन टू सीजन वेरी करता है, और दीज प्लांट्स हैव स्पेसिफिक सीड सोइंग पीरियड ड्यूरिंग द ईयर, और उस टाइम पे हम इन्हें बीजते हैं. एंड आफ्टर दैट वी कैन रेज द नर्सरी और वी कैन ग्रो डायरेक्टली देम ऑन द प्रिपेयर्ड लैंड. And after preparation of the seeds for sowing, we will sow these seeds in a well-prepared nursery beds with a mixture of sieve, sand, soil and abundant well-rotten farmyard. तो जो soil हमने ready किया उसमें हमारे पास farmyard manure अच्छा होगा. Then we have sand and soil in good ratio so that it can hold water and can grow the seeds. So cover seed lines with sieved farmyard manure. जो सीड लाइंस हैं नर्सरी बेड में उसे हम कवर करते हैं बाय फार्मयार्ड मैन्योर, एंड कैन कवर बेड्स विद हेजियन क्लॉथ. हेजियन क्लॉथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है. आफ्टर 2 or 3 days इरीगेट अगेन बेस्ड ऑन द क्लॉथ मॉइस्चर. उसके बाद हम फिर से इसमें पानी डाल सकते हैं. रिमूव द क्लॉथ आफ्टर जर्मिनेशन. जैसे ही जर्मिनेशन हो जाती है हम इस क्लॉथ को रिमूव करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज़
This racking, we will prepare or level the soil. Then after that, we'll mix the soil with farmyard manure and sand. And for irrigation, we can use this can which is known as a rose can. So transplant seedlings at 4 leaf stage, typically 30 to 35 days after sowing. और जब नर्सरीज में प्लांट्स रेडी हो जाते हैं आफ्टर जर्मिनेशन, तो इस स्टेज में, दैट इज़ 4 leaf स्टेज, हम इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इन द प्रिपेयर्ड एरिया. So this is Hessian cloth and it is used to retain the moisture. और ऐसे हम नर्सरीज को ग्रो करते हैं. एंड आफ्टर दैट these plants are transplanted at 4 leaf or 4 to 6 leaf stage. Next, need of nursery raising. So why we need this nursery for sowing seeds? Because there are some precious small size seeds. If we sow them as by using broadcasting method, so they get lost and they are unable to germinate. So that's why we have to raise the nurseries in a specified smaller area so that we can manage these plants. So managing small precious seeds of seasonal annuals is crucial, and for that we have to raise nurseries. Broadcasting seeds, if we sow them as by broadcasting methods, तो ऐसे जब हम थ्रो करते हैं सॉइल में, तो ये जो सीड्स हैं ये लॉस हो सकते हैं, रिजल्ट इन लॉस एंड अनइवन जर्मिनेशन. और जर्मिनेशन भी इक्वल नहीं होती है, दैट लीड्स टू अनइवन जर्मिनेशन. इंस्टेड, नर्चरिंग सीड्स इन नर्सरीज और पॉट्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन इंश्योर्स यूनिफॉर्म ग्रोथ. तो इसलिए हम इन्हें ग्रो करते हैं बेड पे या फिर नर्सरी बेड पे या फिर पॉट्स पे, ताकि इनकी जो ग्रोथ है दैट इज़ इवनली, मीन्स एक ही समय पे सारे के सारे जर्मिनेट करें. एंड वी कांट यूज़ दिस सेम नर्सरी बेड फॉर ईयर आफ्टर ईयर, बिकॉज इसमें जो फंगल अटैक के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं. सो रोटेट नर्सरी एरियाज ईयरली, चेंज पॉटिंग मीडिया टू प्रिवेंट द फंगल डिजीज. तो हमें उनको चेंज करते रहना चाहिए. In this way we will make these nursery beds, or in lines में हम sow करते हैं seeds को manually. Then there is one emerging method which is known as plug technology. इस technology का बहुत ज़्यादा use हो रहा है आजकल. For this we use a tray. ऐसी ट्रे हम यूज़ करते हैं और इसमें हम जो मैन्योर है या पीट है उसे यूज़ करते हैं. And after that we will put a one seed on this tray. और इस तरह से जो ट्रे है इसके अंदर जो प्लांट्स है वो हम ग्रो कर सकते हैं. सो इमर्जिंग प्लग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सोइंग इंडिविजुअल सीड इन अ प्लास्टिक ट्रे फिल्ड विद मटेरियल लाइक वी हैव कोकोपीट और परलाइट, और इंश्योरिंग इंटैक्ट रूट बॉल्स एंड रिड्यूसिंग ट्रांसप्लांटिंग शॉक. सो एक बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और इसमें जो सॉइल है वो इंटैक्टली बाहर निकलती है और इस प्लांट को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बिना प्लांट को शॉक दिए. एंड दीज आर वेरी ईजी टू ट्रांसपोर्ट ऑल्सो. So this method yield healthier nursery stock and facilitate transportation. So this is where next is pricking. तो pricking एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्लांट्स को नर्सरी बेड से अप्रूट करते हैं और उसे पैन में, ट्रे में या फिर किसी पॉट में ट्रांसप्लांट करते हैं. सो ट्रांसफरिंग सीडलिंग्स फ्रॉम द जर्मिनेशन साइट्स टू पॉट्स, ट्रेज और पैन्स. तो जहाँ पे हमने जर्मिनेट किया वहाँ से हमने इनको ट्रांसफ़र करना है किसी पॉट के अंदर या किसी पैन के अंदर या फिर पॉट के अंदर. वंस एट अ मैनेजेबल साइज, सीडलिंग्स आर केयरफुली सेपरेटेड, टिपिकली 5 to 10 centimeters apart, and placed in a prepared holes with firmly packed soil around the collar and roots. उसके बाद हम इन जो प्लांट्स हैं जब ये रेडी हो जाते हैं एक डेफिनेट साइज तक पहुंचते हैं. आफ्टर दैट वी विल अप्रूव देम बाय यूजिंग सर्टेन मैकेनिकल डिवाइसेस, और छोटे छोटे होल्स क्रिएट करते हैं एरियाज़ में जहाँ पे हम इन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं. एंड दीज होल्स आर फिल्ड विद मैन्योर एंड सॉयल, ताकि ये एयर टाइट बने, और उसके बाद हम इसमें इरीगेशन करते हैं. द सॉयल यूज्ड इज स्लाइटली रिचर दैन इन सीड पैन्स, प्रमोटिंग हेल्दी ग्रोथ. तो जो सॉयल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पॉट्स में वो थोड़ी सी मिनरल्स में रिच होती है. मीन्स इसमें हम ज़्यादा फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमने नर्सरी रेज करने के लिए यूज़ किया था. This delicate process executed with care to avoid damage. और ये जो सेपरेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इट इज़ वेरी डेलिकेट प्रोसेस, और इसको केयरफुली इन सीडलिंग्स को यहाँ से अप्रूट किया जाता है टू अवॉइड डैमेज, मिनिमाइज मॉर्टेलिटी रिस्क, ताकि प्लांट्स की डेथ ना हो ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग बाय कीपिंग रूट्स अनडिस्टर्ब्ड. और ये जो रूट्स हैं ये हमें इंटैक्ट रखनी है, ब्रेक नहीं होनी चाहिए रूट्स.
Then alternatively, seedling can be individually picked in a small nursery pot that is 75 centimeters and transplanted at a 4 to 6 leaf stage using intact compost to reduce the transplant shock. इन प्लांट्स को हम छोटे छोटे पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद इसकी सॉइल को जो इंटैक्ट होती है उसको एज इट इज़ हम किसी होल पे जो लैंड हमने प्रिपेयर किया उसके अंदर हम इसे ऐसे ही डाल सकते हैं ताकि जो प्लांट है उसको ट्रांसप्लांट का शॉक ना लगे. Next comes planting of cuttings for rooting. Means we can you produce roots in a stem cuttings. जो छोटी सी cuttings हैं इनमें हम roots induce कर सकते हैं by putting these stem cuttings in the soil. जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सॉइल होती है दैट इज़ लूज सॉइल एंड इज़ रिच इन फार्म यार्ड मैन्योर एंड मिनरल्स. उसमें कुछ प्लांट्स में रूट्स इंड्यूस कर सकते हैं इन स्टेम कटिंग्स. सो इन लूज सॉइल कटिंग कैन बी हैंड प्रेस्ड. फॉर हार्ड और रॉकी सॉइल यूज अ टूल टू क्रिएट होल्स. हार्ड सॉइल को हम पहले थोड़ा सॉफ्ट करेंगे बाय यूजिंग सर्टेन टूल्स एंड आफ्टर दैट विल डिग्स अ होल इन विच वी कैन प्लेस दिस कटिंग. So plant cuttings upright, budding most below the ground and with buds up. तो इनको हम upright position पे प्लांट करते हैं प्लांट कटिंग्स को और इनको बरी करते हैं जिसमें हम ग्राउंड लेवल पे 2-3 बर्ड्स को बरी करते हैं विद हेल्प ऑफ सॉयल सो दैट देयर इज़ नो एंट्री ऑफ एयर. इसमें एयर रश ना करे, इसको पैक किया जाता है प्रॉपरली. Ensure the cuttings bottom is in wet soil or irrigate until wet rooted. और इसमें हमें इरीगेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है सो दैट द सॉयल बिकम्स वेट अप टू द रूट फॉर्मेशन, जब तक इसमें रूट्स ना बने. विलो कटिंग्स फॉर बैंक स्टेबलाइजेशन आर स्पेस 3 फीट अपार्ट. जो विलो प्लांट है उसकी कटिंग्स हम यूज़ करते हैं 3 फीट के डिस्टेंस पे. For ornamental hedges means if we have to grow a shrubby hedge, which is made by tightly packed plants. ऐसी hedge बनाने के लिए हम plants को place करते हैं closely and plant unrooted cuttings directly where the hedge will be established. तो वहीं पे इन cuttings को नज़दीक place करते हैं ताकि यहाँ पे एक proper hedge बने. And we can give that hedge a specific shape by pruning. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ ट्रांसप्लांटिंग. तो ट्रांसप्लांटेशन सबसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं पैडी के केस में. फर्स्टली वी रेज अ नर्सरी एंड आफ्टर दैट वी विल अपरूट दिस प्लांट्स सीडलिंग्स और इनको हम फिर ट्रांसप्लांट करते हैं इन अ वेल प्रिपेयर्ड सॉइल. सो ट्रांसप्लांटिंग अकर्स अ मंथ आफ्टर सोइंग विद फुली जर्मिनेटेड सीडलिंग्स हैविंग 3 to 4 ट्रू लीव्स. तो इस स्टेज में हम इनको अपरूट करते हैं और ट्रांसप्लांट करते हैं. कॉटिलीडन्स इनिशियली प्रोवाइड स्टोर फूड मटेरियल. इनिशियली जो सीड होता है उसके अंदर जो कॉटिलीडन है वो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. एट 3 to 4 लीव्ड स्टेज प्लांट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के बाद ये अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज कर सकता है. फॉलोड बाय ट्रू लीव ग्रोथ फॉर फोटोसिंथेसिस. Then ideal conditions for transplantation include irrigating the field before transplanting, choosing a calm, cloudy late afternoon to avoid midday heat. तो हम एक स्पेसिफिक डे का टाइम आफ्टरनून के बाद ट्रांसप्लांट करने का जो टाइम है दैट इज़ द बेस्ट टाइम. Moist, not saturated. Garden soil enriched with compost is essential. Means बहुत ज़्यादा इरीगेशन भी नहीं करनी है. The soil should not be saturated with water. तो moist होनी चाहिए soil and it is well mixed with farmyard manure. ये सबसे ज़रूरी चीज़ है प्लांट को ग्रो करने के लिए. Then firm planting around roots coupled with light watering for a week. उसके बाद इसमें इरीगेशन की जाती है by using rose can sprinkler. इससे इसमें इरीगेशन की जाती है. That aids seedling establishment और उससे जो प्लांट है वो खुद को सेटल डाउन करता है and can grow. While caution against overwatering prevents डैम्पिंग ऑफ डिजीज़. अगर हम एक्सेसिव वाटर इसमें दे देंगे सो दैट कैन लीड्स टू अ डिजीज़ विच इज नॉन एज डैम्पिंग ऑफ डिजीज़, जिससे सीडलिंग जो है सॉइल के सरफेस के पास से बहुत वीक हो जाती है और यहाँ से डैम्प ऑफ हो जाती है, गिर जाती है. सो दैट डिजीज़ इज नॉन एज डैम्पिंग ऑफ डिजीज़. The next important step is shading. Shading means to prevent excessive heat, to prevent the plants from excessive heat.
So plants need sunlight, but excess exposure harms crops. So shedding, a cost-effective cooling method, can be external over greenhouse glazing or via internal screens. तो इससे हम शेडिंग प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. It reduces electricity costs when fans are in use. तो फैन को बिना यूज़ किया हम प्लांट्स को शेडिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं. UV treated polythene sheets or nets are commonly used, applied in structures like PVC pipes or wood-based shade net houses. तो जो PVC की शीट्स हैं इन्हें हम कॉमनली यूज़ करते हैं. इन्हें हम या तो PVC पाइप पे या फिर इन्हें यूज़ किया था बैम्बू के स्टिक्स पे, उन्हें हम यूज़ करते हैं, या फिर बैम्बू बेस्ड शेड नेट्स भी यूज़ किया जाता है. These provide controlled environments with varying shade percentage, enhancing growth, yield and quality while modifying microclimate. तो ये जो शेड नेट्स होते हैं ये एक्सेसिव हीट से प्लांट को प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज सम प्लांट्स आर हीट सेंसिटिव, स्पेशली द प्लांट्स विद लार्ज फॉलिएज, मीन जिनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं. सो जो ये नेट्स होती हैं दे हैव डिफरेंट शेडिंग परसेंटेज. For example, we have 5%, then 10%, 35%, 40%. 35% means these sheets can prevent 35% light from entering inside this net, or 65% of light can enter inside the net. So these nets have different percentage values to provide shading. So choosing the right shade percentage is crucial for each plant's sunlight requirement, optimizing productivity and quality. So जो plant की requirement है sunlight के लिए वो vary करती है. So by choosing the right quality of shading we can enhance the productivity and quality of the crop. Next, advantages of shading. So helps in growing ornamental plants requiring lower light intensities. In plants को move कर सकते हैं. Then it is required for mostly the large foliage plant, means having large leaves like we have aglaonema ferns, इनके केस में हम यूज़ करते हैं. And also for cut flowering plants like lilium and hydrangea. तो इन plants में हमें shading की ज़रूरत पड़ती है. This process can enhance yield in summer season, जिससे हमें जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा मिलेगी. And it also provide protection against pest, weather disturbances like we have hailstorm, wind, तो उससे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है शेडिंग. Then it is used in hardening process of tissue culture plants. Hardening एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लांट्स को लैब से फील्ड तक निकालते हैं बाय अ ग्रेजुअल प्रोसेस, जिसमें इन्हें डायरेक्टली फील्ड पे नहीं निकाला जाता है एंड ग्रेजुअली हम इन्हें फील्ड तक ले जाते हैं. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज हार्डनिंग. नेक्स्ट कम्स डिसबडिंग. तो इट मीन्स सिंपली दैट रिमूवल ऑफ बर्ड्स. जो ये बर्ड्स इन्हें रिमूव किया जाता है, मोस्टली जो क्राइजेंथियम प्लांट है इसमें हम ये करते हैं. सो डिसबडिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग अनवांटेड बर्ड्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक वी हैव कार्नेशन, क्राइजेंथियम, डहलियाज और सर्टेन रोज कल्टीवार्स. तो इनमें हम जो अनवांटेड बर्ड्स उन्हें रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसबडिंग. इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द एपिकल बर्ड इज 15 mm इन डायमीटर. तो जब छोटे साइज़ का होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 mm इन डायमीटर, तो उस समय इसे हम रिमूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसबडिंग लाइक दिस. और ये छोटे बर्ड्स होते हैं, रिमूव किया जाता है लाइक दिस, एंड देयर इज़ ओनली वन बर्ड एंड विल प्रोड्यूस गुड क्वालिटी फ्लावर. Dahlia, this is the photograph of Dahlia. So in standard chrysanthemum or carnation, lateral buds are removed, allowing the main bud to grow. जो carnation और chrysanthemum है इसमें हम lateral buds को remove करते हैं और जो main shoot है उसे ही grow करने दिया जाता है. This is the photograph of carnation flower. For spray types, only the main flower buds are removed, letting axillary and side buds to develop. तो कुछ प्लांट्स में हम जो टिप का बर्ड है उसे रिमूव करते हैं और लेटरल जो प्लांट्स लेट्स हैं ब्रांचेस ग्रो करती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट कम्स डिफोलिएशन. डिफोलिएशन मीन्स रिमूवल ऑफ लीव्स. तो लीव के रिमूवल को डिफोलिएशन बोलते हैं. So defoliation, the removal of foliage, is employed to induce flowering in certain plants and reduce transpiration stress. तो जब पत्तियाँ रिमूव करते हैं तो ट्रांसपिरेशन का जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. जब हम प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, इट कैन बी डन मैनुअली. इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, मीन्स
हम हैंड से रिमूव करेंगे लीव्स को, और वी कैन यूज सर्टेन केमिकल्स और बाय विद होल्डिंग वाटर। अगर हम पानी नहीं देंगे तब भी पत्ते जो है शेड करते हैं। सो इन रोजेज डिफोलेशन कैन लीड टू इंक्रीज ब्लाइंड शूट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं जब हम डिफोलेशन करते हैं। एंड इन जैस्मिन, जो जैस्मिन इट इज़ कॉमनली डिफोलेटेड बिफोर द फ्लावरिंग सीजन थ्रू वाटर विद होल्डिंग। तो इसमें हम पानी देते नहीं इस प्लांट को, जैस्मिन को, जिससे पत्ते नीचे गिर जाते हैं एंड दैट लीड्स टू लीफ मैनुअली, और जिससे लीफ गिर जाते हैं और हम इस लीव्स को मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं। Chemical defoliation is less common in India, but it has been successful with substances like we have some chemical pentachlorophenol in jasmine. तो ये जो केमिकल है जैस्मिन में हम इसे यूज़ करते हैं, pentachlorophenol. This is the flower of jasmine. Then we have this nasturtium. This is the fruit of this garden nasturtium. It may require foliage reduction to enhance or encourage flowering and ensure flowers aren't hidden. तो इस प्लांट में भी लीव्स को रिमूव किया जाता है, तभी इसमें फ्लावर्स क्लियरली विजिबल होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। फॉर रोजेज एंड श्रब्स डिफोलेशन एड्स इन रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन एंड प्रमोटिंग हेल्दी फ्लावर स्टेम ग्रोथ ड्यूरिंग एस्टेब्लिशमेंट। तो कुछ प्लांट्स में जैसे रोज़ है, इसमें जो ट्रांसपिरेशन है वो कम होता है जब हम लीव्स को रिमूव करते हैं, और जो प्लांट है दैट शोज हेल्दी ग्रोथ। नेक्स्ट कम्स बेंडिंग एज अ नेम इंडिकेट, इसमें हम शूट्स की बेंडिंग करते हैं। सो बेंडिंग इन रोजेज इज डन वंस फ्लावर बर्ड्स आर विजिबल। तो इस तरह से शूट को बेंड किया जाता है। स्टेम आर जेंटली बेंड आउटवर्ड इंश्योरिंग दे रिमेन इंटैक्ट फॉर शुगर ट्रांसपोर्ट। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली ब्रेक करना है, तब इसमें शुगर की सप्लाई रुक जाती है एंड और ये जो प्लांटलेट है इसकी डेथ हो सकती है। सो वी हैव टू बेंड इट केयरफुली। दिस प्रोसेस प्रिवेंट्स द फ्लावर बर्ड्स ऑन दीज बेंड शूट्स। इसमें जो बेंड शूट्स हैं इनमें फ्लावर्स बनते नहीं हैं। अलाउइंग लीव्स टू कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस, जिससे जो लीव्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली फोटोसिंथेसिस करते हैं। रिमूविंग द डोमिनेंट एपिकल शूट ट्रिगर्स हार्मोनल चेंजेस प्रमोटिंग बेसल बड ग्रोथ। जब हम एपिकल शूट को रिमूव करते हैं तो जो लेटरल बर्ड्स हैं उनमें ग्रोथ होती है। इंक्रीज साइटोकाइनिन फ्रॉम बेंडिंग लीड्स टू बड ब्रेक रिस्टोरिंग हार्मोनल बैलेंस थ्रू ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन द न्यू शूट्स। तो जब बेंडिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेक आती है, जिससे साइटोकाइनिन का रेशो इंक्रीज होता है और जो लेटरल बर्ड्स हैं वो ग्रो करते हैं, और आफ्टर दैट जो यंग शूट्स हैं उनमें फिर से ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होती है। प्रॉपर बेंडिंग इंश्योर द ग्राफ्टिंग पॉइंट और कटिंग टॉप बिकम्स द प्लांट्स न्यू टॉप। अगर हम इसको रिमूव करते हैं टिप को, तो जो नया ब्रांचेस का टॉप, नई ब्रांच का टिप होगा, दैट विल एक्ट एज द टॉप ऑफ दिस प्लांट, दैट रिजल्ट्स इन सपोर्टिंग हेल्दी डेवलपमेंट। नेक्स्ट कम्स मल्चिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें हम सॉइल को कवर करते हैं विद सम स्ट्रॉ, लीव्स और गार्डन वेस्ट, जिसमें 3 से 4 सेंटीमीटर के लेयर से हम सॉइल को कवर करते हैं आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, जिससे जो पानी का लॉस है वो प्रिवेंट होता है और जो मिनरल्स हैं वो सॉइल में रहते हैं। सो मल्च रेफर्स टू एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन और इन द सॉइल टू एनहेंस सॉइल कंजर्वेशन, वाटर रिटेंशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मल्चिंग से होती है। एक तो सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रहती है, दूसरा पानी का रिटेंशन रहता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट अप्लाई इट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉप जर्मिनेशन एट अ रेट ऑफ 5 टन्स पर हेक्टेयर फॉर ऑर्गेनिक मल्च। तो एक हेक्टेयर में हम 5 टन्स ऑफ मल्च यूज़ कर सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मल्च इन एग्रीकल्चर हैज़ एंशिएंट ओरिजिन। ये ऐसा नहीं कि दिस इज़ अ न्यू प्रैक्टिस, दिस इज़ वेरी प्रिमिटिव प्रैक्टिस and is vital in dry regions for water conservation and erosion prevention. Properly managed mulch plays a key role in controlling wind, water erosion, along with benefits like soil temperature regulation. Soil का temperature maintain रहता है, soil का structure enhance हो जाता है, moisture retention is there, then there is an increase in nutrients amount, then weed suppression, weeds grow नहीं करती, and quality control of crops. So this is very important. Uses, these are very important uses of mulch. Next we have different types of mulches. Material used for mulches are crop residues, leaf dippings, bark manure, paper, plastic films, petroleum products, gravels, etc. Firstly, plastic films. So for this we uses thin sheets of plastic. So plastic films such as polyethylene and polyvinyl types maintain soil moisture by reducing evaporation, promoting infiltration and curbing weeds transpiration. तो ये जो शीट्स हैं ये मोस्टली यूज़ की जाती हैं
जो प्लास्टिक शीट्स हैं जो कि मल्चिंग के लिए यूज़ की आती हैं, और इसकी वजह से जो वीड्स है उनकी ग्रोथ नहीं होती है, और ट्रांसपिरेशन और जो पानी है, वाटर है, उसकी रिटेंशन होती है, और जो प्लांट्स है दे कैन ग्रो ईजली. Although it is effective, but they are expensive and challenging for large scale, low value crop management. So that's why ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉस्टली है. ब्लैक प्लास्टिक को हम मोस्टली प्रेफर करते हैं टू डेटर वीड ग्रोथ, ताकि वीड्स की ग्रोथ ना हो, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ ना हो. नेक्स्ट कम्स क्रॉप रेजिड्यू और स्टबल मल्च. तो इसमें हम जो स्ट्रॉ है या अपनी क्रॉप्स का या फिर लीव्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं. तो इट इंक्लूड स्ट्रॉ, लीव्स एंड सॉ डस्ट. जो हमारी जो टिम्बर वुड है उससे जो डस्ट निकलती है उसे यूज़ करते हैं, या फिर हम जो वुड चिप्स होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं. दीज आर कॉस्ट इफेक्टिव मल्चिंग ऑप्शंस. दे आर वेरी चीप. सो दे फैसिलिटेट वाटर एंट्री इनटू द सॉइल. इससे पानी की एंट्री सॉइल में होती है. दे फैसिलिटेट दैट्स वाइल प्लास्टिक शीट्स में पानी की एंट्री नहीं होती है, इंक्रीजिंग मॉइस्चर लेवल एंड रिड्यूसिंग वेपोरेशन. Light and thin material like we have dry grass that works best, followed by gram stalk, while heavy materials like wheat and jowar stubbles are less effective due to limited canopy cover. Applying 5 tons per hectare of mulch after crop emergence is most effective in dry farming that I have already discussed. तो हम पहले जर्मिनेशन होती है सीड की, उसके बाद हम इस मल्च को यूज़ कर सकते हैं, एंड इट्स अमाउंट इज़ 5 tons per hectare. So we have different types of mulch, like we have wood mulch जिसमें हम लकड़ी की जो सॉ डस्ट है या फिर वुड चिप्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं. दैन लॉन क्लिपिंग्स, जो लॉन की घास है उसे हम यूज़ कर सकते हैं. दैन स्ट्रॉ एंड hay. So these can be used as mulching material. नेक्स्ट रॉक एंड ग्रेवल. तो रॉक और ग्रेवल को भी हम यूज़ करते हैं एज अ मल्चिंग मटेरियल फॉर मोस्टली द जीरोफिलिक प्लांट्स. जो कैक्टस हैं या कैक्टस के तरह प्लांट्स हैं उनमें हम यूज़ करते हैं. तो दीज कैन आल्सो बी यूज्ड एज मल्च इन कूलर क्लाइमेट. द हीट इज़ रिटेन बाय रॉक्स एंड मे एक्सटेंड द ग्रोइंग सीजन. तो जो रॉक्स हैं वो हीट को रिटेन करते हैं जो कूलर क्लाइमेट है वहाँ पे. दिस टाइप ऑफ मल्च इज़ अप्लाइड इन कल्टिवेशन ऑफ कैक्टाई, सक्यूलेंट्स एंड अदर रॉकी प्लांट्स. नॉट ओनली विल कंजर्व मॉइस्चर बट विल ऑल्सो इंक्रीज एस्थेटिक अपील ऑफ द एरिया. तो इससे जो ब्यूटिफिकेशन है उस एरिया की वो भी इंक्रीज़ होती है. मॉइस्चर लॉस तो प्रिवेंट करते ही हैं, साथ में ये एस्थेटिक ब्यूटी को भी इंक्रीज़ करते हैं. This was all about for our today's discussion about routine garden operations. The rest of the topic I will try to cover in second part. I hope you will get some idea from this presentation. If you have any questions, queries, and any suggestions, you can give it in comment section. Thanks for watching. Have a nice time.